ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪುನಃ ಸಲ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ರಾಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಡುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಗ ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ, ಅದು 41ನೇ ಸಂಧಿ 9ರಿಂದ 20 ವಚನಗಳು. ಯೆಶಾಯ 41 ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸಸ್ 9 to 20. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆ, ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಪೂರೈಸುವಂತನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. प्रियो, ये कह रहा हूं कि 41 जो एशिया का भाग में है, वहां परमेश्वर अपने लोगों को अपने वाग्दान के द्वारा वो जो है स्मरण दिलाता है कि याकूब का बच्चे, आप अब्राहम के संतान है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं, तुम्हें संभालूंगा और तुम्हारी हर एक जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा. ये प्रॉमिस, ये वाग्दान, ये जो है परमेश्वर अपने लोगों को कर वो जो है बहुत ही लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है और एनकरेज कर रहा है कि वो अब परमेश्वर के मार्ग में हमेशा चलते रहे. ये उद्देश्य यहाँ पर हम देखते हैं. ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರು ಆ ಜನರಿಗೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳು, ವಾಗ್ದಾನದ ಮಾತುಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೋಡಿ ಜನರು ಬಹಳ ನಿರಾಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. बहुत से लोग जो है निराश में है, दुखित में है, शोकित में है. काम के विषय में देखो तो चिंता है, पैसे के विषय में देखो तो उन्हें चिंता है, पढ़ाई के विषय में देखो बहुत ही चिंता है. हर एक क्षण में, जीवन के हर एक मोड़ पर हर एक को जो है प्रोत्साहित नहीं, लेकिन उनको क्या मिल रहा है? निराश ही निराश, मन टूटा है, व्याकुल है, वे निर्भय है. इस प्रकार से हम हर एक व्यक्ति को देखते हैं. आज मैं जो शिष्य कहना चाह रहा हूँ, प्रोत्साहित करना, तो एनकरेजिंग वन अनदर, एक दूसरे को ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಗುಣವು ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಕಲಿಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾದ್ರು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿರಾಶವಾಗ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಹೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನಾದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ में मैं हमेशा रहूंगा. ये जो है वाग्दान परमेश्वर हमको करता है. प्रियो, इस वाग्दान के द्वारा हम देखते हैं प्रभु हर क्षण हमारे साथ में रहकर वो प्रोत्साहित करने वाला परमेश्वर रहता है. कलीसिया क्यों जुड़कर रहता है? क्योंकि हम एक दूसरे को प्रेरणा करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं. वो प्रभु में बने रहकर जो है विश्वास में
और जो है उद्धार में हमेशा बने रहे। इसलिए जो है कलीसिया में लोग जो है आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, आराधना करते हैं। अगर जहां इंसान टूटा हुआ मन अगर रहे तो वो इंसान कलीसिया में क्यों आता है, प्रभु के पास क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में कुछ बातें करे, परमेश्वर उनको जो है प्रोत्साहन दे, कुछ जो है प्रॉमिस बातें दे। इसलिए जो है कलीसिया में आज लोग जो है भर भर कर आते हैं। मेथोडिज्म यानी मेथोडिस्ट चर्च का जो है बुनियाद, उसका जो फाउंडेशन, उसका नींव फेलोशिप में क्या था कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, पाप में ना गिरे, वे निराश ना हो, वो आत्मा में प्रभु में जो है हिम्मत के द्वारा, सामर्थ के द्वारा बढ़कर आगे बढ़ने के लिए जो है मेथोडिज्म जो है प्रारंभ हुआ। और इस मेथोडिस्ट फेलोशिप में हमेशा एक दूसरे को, भाई बहनों को जो है प्रोत्साहित किया करते थे। आज भी अगर कलीसिया है, क्यों है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए हम कलीसिया बनाकर रखते हैं। प्रियो, हम बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। उसका नाम जो है सभी लोग जानते हैं, बारनबास। ये जो है उसको दिया गया हुआ एक शीर्षक नाम हम देखते हैं। उसका जो है नाम इस प्रकार से है, वो ये लेवी से जुड़ा हुआ है और उसका नाम जो है ಜೋಸೆಫ್ है। ಯೋಸೆಫನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಅಪೋಸ್ತಲರು ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು, ಬಾರ್ನಬಾಸ್। अपोस्तलों ने जो है जोसेफ जो लेवी का था, उसको जो है एक नया नाम दिया, बारनबास, यानी धैर्यदायक, हिम्मत वाला, प्रोत्साहित वाला कर कर उसका नाम का अर्थ है। जो है प्रवृत्ति के काम, उसका जो है 4 अध्याय का 36 वचन देखते हैं। ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 4ನೇ ಸಂಧಿ 36ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, धैर्यदायकನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ। बारनबास मतलब जो है हिम्मत वाला, धैर्य देने वाला, जो है प्रोत्साहित करने वाला। इस नाम का अर्थ हम देखते हैं। प्रयोग बाइबल में 3 तरह के रीति से जो है मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित मिलता है। 3 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಏನದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಸಿಗುವಂತದಾಗಿದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ। ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಬೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್, देवर वाग्दान मूलक, परमेश्वर की वाचा के द्वारा हमको हिम्मत मिलती है, ढाढ़स मिलती है कि हम आगे बढ़ते रहे। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को वाग्दान किया, वाचा बांधा, ये कहा कि तेरे द्वारा मैं बड़ा समूह, बड़ा जन मैं बनाऊंगा, जिसके द्वारा लोग जो है आशीष पाएंगे, वे सभी जो है परमेश्वर को जानेंगे। ये जो है वाग्दान परमेश्वर ने अब्राहम को किया। 25 साल तक इस वाग्दान में अब्राहम जो है विश्वास योग्य रहकर वो आगे बढ़ता गया। परमेश्वर फिर से उसको मुलाकात कर कर जो है हर बार उसके साथ में रहकर उसे जो है हर एक राजाओं से, हर एक बुराई से उसे बचाता गया। और उसकी जो है खजाना या उसकी संपत्ति जो है दुगना बढ़ता गया, उसके भेड़ बकरियां बढ़ते गए, उसके ऊंट जो है, उसके नौकर लोग जो है बढ़ते गए। परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, केवल संतान के द्वारा नहीं। उसने ये कहा कि तू जिसको तो आशीष करेगा वो आशीष पाएंगे, और जो तुझे जो है शपित करेंगे मैं इसे शपित करूंगा। परमेश्वर अपनी वाग्दान संतान को जो है 25 साल के बाद निभा, लेकिन परमेश्वर के साथ में रहकर हमेशा उसको प्रेरणा देता गया कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, हर समय जो है मैं तुझे चला रहा हूं। ये वाग्दान की बातें, हम परमेश्वर की बातें अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं प्रयोग। इसलिए हमारा परमेश्वर वाचा के द्वारा हमको प्रेरणा करता है, प्रोत्साहित करता है कि हम आगे बढ़ते रहे। उसी प्रकार का जो है एक प्रेरणा हम बाइबल में नए नियम में भी देखते हैं, जहां यीशु मसीह का आगमन के बारे में लोग जो है जोशीले बनकर हिम्मत से, धैर्य से वे प्रभु के वचन को बांटते चले गए। और समय बीतता गया, लोग जो है समय बीतने के कारण जो है कुछ लोग जो है अपने प्रियजनों को, प्रेरितों को उन्होंने खो बैठा।
विश्वासी लोगों को खो बैठा, क्योंकि उनको मारा गया, पीटा गया, उनको जो है शहीद किए गए। और कुछ लोग जो है सोचने लगे कि यीशु मसीह आएगा, और कुछ लोग कहने लगे कब आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं। लेकिन जब बस थिस्सलुनीक उसका 4 अध्याय जहां आता है, पौलुस कलीसिया को लिखकर कहता है कि वाग्दान किया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आऊंगा, तुम्हें ले जो है स्वर्ग में, आकाश से मैं तुम्हें उठा लेकर स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। इस प्रकार का वाग्दान जो है फिर से पौलुस उनको याद दिलाता है, और ये कहता है कि हिम्मत रखो, धाड़स रखो, एक दूसरे को तो प्रोत्साहित करो, शोकित ना हो, निराश ना हो, मरे हुए लोगों के बारे में ना सोचे, लेकिन जीवित परमेश्वर की ओर अपने मन को, ध्यान को रखकर चलते चले। इस प्रकार से जो है पहला थिस्सलुनीक उसका 4 अध्याय का 18 वचन हम देखते हैं। वहां पौलुस कहता है कि एक दूसरे को प्रेरित करो, जो प्रेरणा दो, हिम्मत करो कि वे विश्वास में आगे बढ़ते रहे। ये जो है प्रॉमिस हम देखते हैं, यीशु मसीह आएगा, ये हमारे लिए जो है एक आशा है, निरीक्षा है, हमको हिम्मत देती है कि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे साथ में वाग्दान किया है वो सब कुछ पूरा करता रहेगा। आनंद काल का जीवन भी वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। हम सभी लोग इसको मानते हैं। दूसरी बातें हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को उसने प्रेरणा किया। प्रेरित लोग या अपोस्तल वे जो थे, उन्होंने जो है हर एक कलीसिया को वो पत्र लिखते रहे ताकि उनको प्रोत्साहन करे। और कुछ व्यक्ति पर्सनल भी जो है लेटर लिखे गए। ये लेटर्स के द्वारा हम देखते हैं जब उनको जब पढ़ा गया, वे जो है अपने सुसमाचार के बारे में, अपने कलीसिया के बारे में, अपने विश्वासी लोगों के बारे में सब कुछ जानकारी इस जो है एपिस्टल्स में हुआ करता है। और कई एपिस्टल जो है खो गए, जलाए गए, लेकिन जितना बचा है वो एपिस्टल्स हम पौलुस के एपिस्टल्स को देखते हैं। कुछ लेटर्स जो है यूहन्ना के देखते हैं, पतरस के देखते हैं, और जॉन के भी देखते हैं। इस प्रकार से कई एपिस्टल्स हम लोग बुक्स हम देखते हैं। यहाँ पर पौलुस जो है अपने एपिस्टल को लिखने के द्वारा कलीसिया को जो है जागरूक रखना चाहता है। उन्हें जो है डांट कर जो है फिर से कहता है कि आगे बढ़ो, पीछे ना मुड़े, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗಬೇಡ್ರಿ। ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। इन सारे बातों में लेटर लिखने का उद्देश्य यही है कि एडिफाई, एक दूसरे को जो है संभाल कर चलाए, एक दूसरे को जो है प्रेरणा करते चलाए। ये जो है लेटर्स के द्वारा आज भी अगर हम बाइबल प्रियो जब हम पढ़ते हैं, हम जो है प्रेरणा पाते हैं, क्योंकि वो प्रभु का वचन है। गॉस्पल जो देखते हैं, सुसमाचार भी हम जब पढ़ते हैं तो हमको प्रेरणा मिलता है, गवाही को हम सुनते हैं, हमको प्रेरणा मिलता है। और हम आज जो है मैगजीन्स के द्वारा अनेक मसीह लोगों को हम जो है प्रेरणा कर रहे हैं, सुसमाचार को सुना रहे। जब हम सुनते हैं तो हमको बहुत ही जो है हिम्मत भर जाता है। इसलिए प्रियो, ये बहुत ही मुख्य पात्र जो है उन दिनों में कलीसिया के समय में हम पहली शताब्दी में हम देखते थे। एक मैं गवाही देना चाहता हूँ। रेवरेंड जोसेफ गोस्ट जो है वो सीएनआई चर्च के पासबान थे है, और जो है वो इलाहाबाद में अपनी सेवकाई को करते थे। उसी प्रकार वे जो है एक प्रोफेसर इंग्लिश जो है सिखाने का प्रोफेसर वो जो है इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में करते थे। वो हमेशा जो है अपने एक बैग में जो हमेशा पुरानी चीज़ों को हमेशा लेकर आकर स्टूडेंट्स को वो दिखाया करते थे। कभी कभार जो है गोल घड़ी जिसका जो चैन था वो दिखाया करते थे। कभी कभार वो लेटर्स बहुत पुराने लेटर्स को लेकर आकर जो है कभी कभार वो हमारे सामने अपने फ्रेंड्स के, अपने मित्रों के जो फ्रेंड्स को पढ़ते थे। और कभी कभार वो कहते थे कि जब मैं निराशा होता हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ, इन लेटर्स को मैं अपने घर में निकाल कर मैं पढ़ता हूँ, और एक जो है रौनक मुझ में आ जाती है, एक खुशी मुझ में आती है, और मैं उन सारे जो भूले हुए बातों को फिर से मैं याद करता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स है, मेरे परिवार के लोग हैं जो मुझे फिक्र करते थे, वे हमेशा जो है अलग अलग स्थिति में मुझे लिखे हैं। तो उनका जो है एक आदत था कि पुराने लेटर्स को फिर से बार बार पढ़ना, इसके द्वारा वे प्रेरणा होते थे। प्रियो, आज भी मैं आपसे कहना चाहूँगा,
आपके प्रिय लोग हैं, आप लिखिए, उनको जो है लेटर्स लिखिए। आज मैं जानता इलेक्ट्रॉनिक जो है मैसेजेस है, लेकिन उतना प्रभावशाली से बढ़कर लिखा हुआ जो लेटर है बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसलिए बाइबल मैं आज बता रहा हूँ कि बहुत ही आज प्रेरणा देने वाला बाइबल जो लिखा हुआ है, बहुत साल हजारों साल पहले लिखा हुआ बाइबल आज जो है हमको प्रेरणा देती है। प्रियो, इन सारे बातों को मैं आज बता रहा हूँ। और तीसरी बात मैं आज आपको बताना चाहूंगा। तीसरी बात जो हम बाइबल के द्वारा देखते हैं, प्रचार के द्वारा प्रेरित जो है वे प्रचार करते थे लोगों को प्रेम के बारे में, यीशु मसीह की प्रेम के बारे में, उसकी क्रूस के बारे में, क्षमा के बारे में, अनंत काल के जीवन के बारे में, मुक्ति के बारे में, स्वर्ग की बातें बताया करते थे। वे जो है एलिंग्स किया करते थे, चंगाई किया करते थे। प्रचार करते करते लोग जो है सुनकर वे आकर्षित होकर जो है प्रेरितों के पास वो आते थे। एक बार ऐसा हुआ, पौलुस और बरनबास वे दोनों मिलकर प्रचार कर रहे थे, प्रभु की अनुग्रह उन पर थी। और वे जैसे प्रचार कर रहे, बहुत से लोग चंगाई पाने लगे और वे जान गए कि प्रभु हमारे साथ में है। और वे धैर्य हिम्मत के साथ में और प्रचार करने लगे। कई लोगों ने उनको रोकने की कोशिश किया कि आप ये प्रचार ना करो, यीशु का नाम ना लो, लेकिन सब कुछ करो। फिर भी जो है वे प्रेरणा पाते गए। पौलुस को कई बार जो है बंदी में डाला गया, उसको मारा गया, पीटा गया, खोड़े मारे गए, फिर भी वो कभी जो है पीछे नहीं हटा, क्योंकि प्रभु उसके अंदर रहता था। जो प्रचार उसने सुना है, जो मसीह का आवाज उसने सुना है, वो जो है उसके हृदय में था। आज भी हम कितने सारे वचन हम जब सुनते हैं, प्रिय उन सारी बातों को ना बोले, उसे याद रखे और ये कहे कि प्रभु मेरे साथ में है। कई बार हम देखते हैं कलीसिया में कितने लोग आकर जो है प्रचार तो नहीं कर पाते, लेकिन वो गवाही देते हैं, खड़े देकर गवाही को देते हैं। और कई गवाही को सुनने के बाद में हमारा जीवन एक प्रेरणा से भर जाता है और कहता है कि हाँ, सचमुच परमेश्वर मेरे जीवन में भी ऐसा कार्य किया, सचमुच परमेश्वर मेरे जीवन में भी ऐसा कार्य करता रहेगा। आज लोग जो है टूटे हुए लोग हैं, उनका हृदय जो है शोक से भरा हुआ है, उनको प्रेरणा करना बहुत ही जरूरी है प्रियो। इसलिए आज कलीसिया में आज लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आज का जो 21वीं शताब्दी 21 सेंचुरी का जो कलीसिया में हम देखते हैं, लोग जो है भरना जो है कम हो गए, वो कलीसिया के बाहर रहना आज ज़्यादा पसंद कर पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि संडे के दिन जो है एक छुट्टी का दिन है, खुशी का दिन है, एंटरटेन करना है, एंजॉय करना है, हॉलीडेज को मनाना है, ये जो है खुशी को बाहर ढूंढ रहे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो सच्चा जो आनंद खुशी जो है वो परमेश्वर के संगति के द्वारा हमको मिलेगा, प्रार्थना के द्वारा मिलेगा। इसलिए हम जो है ऑनलाइन हो या कलीसिया जब चालू है तब हो, आप जुड़िए, प्रभु की आराधना करें, आपको परमेश्वर प्रेरणा देगा, एनकरेज करेगा। और मैं कलीसिया के लोगों से, मसीह भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा, एक दूसरे को जो है आप क्या करो, प्रेरणा करो। एक भाई के बारे में इस प्रकार से जो है उदाहरण मैं कहना चाहूँगा कि उसको कुछ काम की ज़रूरत थी। उसको जो है कलीसिया में आकर वो पूछने लगा कि भाई मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए, जो आप लोग मुझे सहायता करो। और एक सिंपल आदमी होने के कारण उसने अपने टूटे हुए जबान से या जो भी उसको शब्द आता है उसके द्वारा उसने मांगा। लेकिन वहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति ने उसको जो है थोड़ा चिल्लाया, धमकाया। इस प्रकार से वो जो है वो व्यक्ति निराश हो गया। निराश होकर कहा कि अरे ज़रूरतमंद में मुझे जो है कलीसिया चर्च मुझे सहायता करना चाहिए। वो व्यक्ति जो है उस कलीसिया को छोड़कर निकल गया। प्रिय, ये आज ये मैं एक गवाही बता रहा हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो है कुछ टूट जाते हैं, उनको संभालना बहुत ज़रूरी है, उनको बांधना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। और कुछ लोग जो है स्वार्थता के मन को
अपने बातों को जो है आगे ला कर रखते हैं, जब उनका पूरा वो विशेष उनका जो है बात नहीं होते तो निराश हो जाते हैं। ये नहीं, हम परमेश्वर में टूटे हुए लोग नहीं हैं, हम ಪ್ರೇರಣಾ ಪಾನೆ ವಾಲೆ ಲೋಗ್ ಬನೆ ನಾವು ಏನದ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಇರುವಂತರಲ್ಲ, ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಹೊಂದುವಂತರು ನಾವು ಆಗಿರುವಂತ ಜನರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ಕಳೆಯುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. कितने लोग हैं जो अपने प्राण को वे खो बैठते हैं. पौलुस ये कहता है कि I can do all things who gives me strength. फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13. फिलिपियों का लिखा हुआ पत्र 4 अध्याय 13 वचन ये कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे बल देता है. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು ಯಾರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯತ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಆತನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. और उसके जीवन में बहुत टूटा हुआ जीवन था, उसका संघर्ष था, उसका मिनिस्ट्री जो है जर्नी जो बहुत ही संकटदायक था, फिर भी वो कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे बल देता है. उसके बल के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ. प्रिय परमेश्वर हमको बल देता रहेगा. यीशु मसीह जब टूटा, बहुत वो जो शोकेत में था, क्रूस पर चढ़ना था, उसकी जो है निराश के द्वारा जो है उसकी जो है पसीना जो है खून के लहू के नहीं गिरे, लेकिन वहाँ पर स्वर्गदूत थे उसको जो है सांत्वना दे रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे. बाइबल बताती है हमारे जीवन में हम टूटे तो परमेश्वर निश्चय हमारे साथ में रहेगा, हमेशा है, वो प्रेरणा करता रहेगा. प्रियो, आज माता पिता अपने बच्चों को प्रेरणा करें, प्रोत्साहित करो, जवान बच्चों को प्रोत्साहित करें. हम एक दूसरे के संगति में रहे, प्रार्थना में रहे, एक दूसरे के लिए जो है विनती करें. आज ये बहुत ही ज़रूरी है. बहुत से लोग आज जो है निराश है, टूटा हुआ हृदय है, बहुत से लोग जो संकट में है. कोई ना कोई चाहते हैं कि जो मैं अपने दिल की बात को उनको बताऊं. प्रियो, हम ऐसे लोग हो, एनकरेज करने वाले लोग हो. हमेशा हमारे जो शब्द जो है किसी को चोट ना पहुंचाए, लेकिन किसी को प्रेरणा करे, सेवा में आने के लिए जो है लोगों को प्रेरणा करे, फुल टाइम सेवा में जाने के लिए प्रेरणा करे. आज हम सभी को परमेश्वर ने इस काम के लिए रखा है और हम कहे कि प्रभु तू मेरे जीवन में जो है तू कार्य कर, मेरे दुख को, मेरे शोक मन को तो फिर से जो है शोक को निकाल कर मेरे मन को बांध, क्योंकि तो हमेशा मेरे साथ में रहने वाला है. ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए. प्रभु हमेशा आपको जो है प्रोत्साहित करता रहे, प्रभु आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाते रहे. प्रार्थना करेंगे हम. ಕೃಪಾಳು ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ, ಸಂಶಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದಿಗೂ ಅದು ಅಳಿದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ನಡೆಸು. ಅಂಥ ಜನರ ಸಮೂಹ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ, ಬಲ, ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಪುನಃ ಸಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಆಲಯದ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು
ಮೊದಲು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಎನ್ನದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಭೆಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಬರುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಹೃದಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇರೋಣ. ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಪಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋಣ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರದೆ ಸಭೆಯನ್ನು, ಆಲಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ವರಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.